Hello, dear friends. Welcome in Homeopathy Canada live session, and this is the third day of our December series. So, during this conversation, we will discuss lots of informations with you guys, cases, medicines, organ repertory, everything we will discuss in these 15 days. So today I invited a legendary Dr. Shoaib Alam Khan, sir, from India. He is very specialist in cancer, especially the cases which are almost incurable, and he show us, he treat us. Dr. Shoaib Alam, he gave a wonderful example how to treat these difficult cases. So during this process, during this conversation, we will discuss everything, how to take the case, how to describe the constitution of the patient, how to differentiate the pathological symptoms and the non-pathological symptoms. As according to Dr. Hahnemann, he described in aphorism number 153, unique, strange, peculiar symptoms. So today we will discuss in advanced pathology how to differentiate pathological symptoms and how to differentiate peculiar characteristic symptoms. As Dr. Bonning Hassan called, these peculiar symptoms are concomitants. So the wait is finished for us. Dr. Shoaib Alam Khan with us. Welcome, sir. Welcome in our today's conversations. आप Thank you. So आपका दिख नहीं रहा फेस वीडियो पे no, everything is okay. आपका यहाँ से दिख नहीं रहा है वो आप सेम वीडियो जाएगी सभी के पास. अच्छा वैसे तुम्हारा चेहरा पहले नजर आता था, अभी नजर नहीं आ रहा. मे बी सर वहां पर जो इंटरनेट की प्रॉब्लम हो सकती है, मगर ये दोनों ही जा रहे हैं आगे. अच्छा दिख रहा है ठीक है. So he doesn't need any introductions, because I saw many cases, many advanced pathological cases with him, and the marvelous results. And if you see the profile of this doctor, he showed that where the people can think the diseases are incurable, he cured these type of diseases. Patience, perseverance, and consistency is the key to get these all difficult cases to be cured. So this is the third day of our December series, where we discuss difficult cases, we discuss organ of medicine, we will discuss materia medica, we will discuss all the informations like doses, how to repeat the dose. But today, our topic is difficult cases, incurable cases, and how to give a constitutional medicines to them, and what we have to observe while giving the medicines. So we will discuss everything, and if you guys have any questions, just write it down. When our session finish, we will take your all questions. If you have, you can send me directly, or you can write it down. We will discuss every questions. Over to you, sir. Thank you. Thank you, Dr. Vivek Ravinder Singh. Very nice. Your speech. अच्छा.
वी आर होम्योपैथ डॉक्टर, हम लोग हैं होम्योपैथिक डॉक्टर। तो ऑलवेज सर्चिंग patient, not disease, not pathology. Every large pathology, कोई डिजीज हो, हम लोग को पेशेंट का ट्रीटमेंट करना है, कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट करना है, सिक को क्योर करना है इन इट्स होल एक्सटेंट, आइडियल क्योर करना है ऑर्गेन सेट, एनिमल सेट। मैंने ह्यूज, अभी मैं कुछ दिन पहले, 10 दिन पहले दिल्ली गया है, वहां भी कैंसर के केसेस देखे हैं। 10-10 मिनट पर रिजल्ट हुआ है। फेल भी हुए हैं बहुत, फेल से सीखा बहुत। तो एक अभी मेरे फेसबुक पे है, ये मुंह का कैंसर था, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, उसका थोड़ा सा पिक्चर राजा दिखाओ। तो 10 मिनट के अंदर 80% रिलीफ हो रही है। एगोनाइज वीडियो पहले दिखाना, आप लोग को दिखा रहे। देविंदर सुन रहे हो? जी सर। अभी मैं दिखाऊंगा, ये 3 रोज का केस है, 4 रोज का स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का केस है। औरत को एक है, वो लोग बहुत सा पेशेंट तो जाने नहीं मानता, बहुत रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो 10 मिनट में 80% उसको आराम मिला। वेरी एगोनाइजिंग पेन, सीवियर, 1 महीना से कांस्टेंट पेन चल रहा। वो पेन किलर भी खाती है, एलोपैथिक दवा। तो उसको आराम नहीं मिलता है। हमने दवा दिया उसको, इग्नेशिया। तो 10 मिनट के अंदर 10 मिनट के अंदर बोलती है हमको 80% आराम है। मतलब एक मेडिकल, एक जादू। तो वो मैं दिखाना चाहता हूँ, क्योंकि जब एक्यूरेसी होती है प्रिस्क्राइबिंग की, या जब कोई बहुत ग्रेट बैट्समैन होता है तो अपने सही रोकना भी जानता है, और मैच को जिताने के लिए एक बॉल है तो छक्का मारना भी जानता है। बहुत कम बोल्ड आउट होता है अगर ग्रेट बैट्समैन है, अच्छा बैट्समैन है तो होम्योपैथिक का भी सिस्टम वही है। मतलब स्लिप नहीं करना है हम लोगों को। हम लोग होम्योपैथिक डॉक्टर फेल करते हैं एकूट प्रॉब्लम में, एकूट पेन में, एकूट प्रॉब्लम में। एक क्रॉनिक अर्थराइटिस का केस है, 20 साल से दवा चल रहा, ठीक है। जब एकूट पेन आता है तो उस पर फेल हो जाते हैं, एलोपैथिक के पास वो लोग जाता है। और हम जितने भी बिग डॉक्टर रहे हैं, हमारे भी जो टीचर रहे हैं, जैसे हमने सीखा अपने बिग भाई से, आलम खान और भी लोग से जो बड़े लेजेंड रहे, दिनदार साहब का पास भी देखा। तो एकूट पेन में फेल हो जाते हैं होम्योपैथिक डॉक्टर हम लोग। तो वो वहां पर एलोपैथिक के पास जाता है, हम लोग टोटल फेल होते हैं। तो हमने उसको मुंह पर दिया। हम लोग इग्नेशिया का ग्रीफ शॉप भी देविंदर अच्छा से नहीं जानते, कॉन्सेप्ट नहीं है। जी सर। समझ गए देविंदर? जी सर। जी हमने सर। ये देखा अभी 30-40 साल में, खासकर 10 बरस से जो हमने सीखा एक्सपीरियंस हम बताते हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिस करते हैं। हमको थ्योरेटिक थ्योराइजिंग लेक्चर में उतना इंटरेस्ट नहीं है। हम चाहते हैं कि जैसे तुम मेहनत कर रहे हो, हम भी चाहते हैं कि हिंदुस्तान में ऐसा कोई अच्छा होम्योपैथिक प्रिस्क्राइबर खड़ा किया जाए जो एलोपैथिक होम्योपैथिक के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है। वो हम दिखा रहे हैं तुमको। ये 2-4 रोज पहले की बात है, मेरे फेसबुक में जो हुआ हमने, और बहुत ईमानदारी से हम शेयर भी करते हैं अपने फॉलोवर के साथ।
वो दिखाओ मोहम्मद खान में भी देखा उसको, तुम पहले उसको दिखाओ, ये उसका जख्म दिखाओ। कसम आपके फोन में, मेरे फोन में नहीं है। और आपका वॉइस है उसका। इनका नहीं दे रहे हो? वीडियो में ये क्यों नहीं देते? अच्छा तो बोले तो इज्जत कर दिया। बोला नहीं। बोल दीजिए, बोलिए। ये इसका पिक्चर है, ये मतलब देविंदर कितना देर में हो सकता ले सकते हैं। बाद में सर आप केस बता दीजिए या फिर बाद में दिखा देंगे, पिक्चर्स दिखा देंगे बाद अगर में। तुम बोलो तो हम रोक के 5-10 मिनट के बहुत बेहुदापनी किया है, नहीं हम उसका पिक्चर बोला था ले लेने के लिए। नहीं बाद तुम में दिखा बोलोगे देते तो हैं सर, बाद में दिखा देते हैं। बहुत बड़ा मिस्टेक फिर जल्दीपन की वजह से। अच्छा ये है, तो हम लोग इग्नेशिया के बारे में हम ये कह सकते हैं देविंदर कि हम लोग को अभी तक शॉक का जो इग्नेशिया उसका कॉन्सेप्ट अच्छा से नहीं है। समझ रहे हो देविंदर? जी जी सर। तो जो कहना चाहते हैं शॉक ग्रीप इग्नेशिया का क्या हम लोग को कॉन्सेप्ट नहीं है इसका। हमको भी ये 10-20-30 साल के बाद इसका अब कॉन्सेप्ट हुआ है बहुत अच्छा, अल्लाह की गॉड की मेहरबानी से। यहाँ दिल्ली उल्ली में बड़ा सक्सेसफुल हुआ है। तो ये जो शॉक ग्रीफ है, लॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड ग्रीफ, mentally and physically exhausted by grief। तो ये औरत का हस्बैंड 30 साल पहले मर गया था, ठीक है जी रविंदर? सर। जी सर। तो उसको उसके बाद से भूख लगना कम हुआ, एनर्जी कम हुआ, आस्ते 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 कैंसर हो गया। तो mentally and physically very exhausted, tired by long concentrated grief। तो वो जो हस्बैंड मरा, जो एक्यूटनेस आज 20 बरस तक उसी तरह। तो उस देश पर उसकी ताजगी जब हमने पूछा तो आंख से आंसू आने लगा, रोने लगी। केला में जब पूछा मालूम हुआ 20 साल पुराना, रोने लगी। तो हमने फिर वो पेन बहुत एगोनाइजिंग था, बड़ी खुशी मिली उनको जब हमने इग्नेशिया बोला 1 ड्रॉप दो। देने के बाद वो बोलती है 5-6 मिनट के बाद कि हाँ डॉक्टर थोड़ा हल्का लगा, ये पूरा सर वर्द है ना, ये पेन कर रहा है। नहीं डॉक्टर साहब 5 मिनट के बाद हम बात कर रहे हैं। बोला एक काम करो, एक डोज आउट लो। बहुत तकलीफ, पलाश हो। अच्छा फिर पलाश 10 मिनट के बाद बोलती है 70-80% कहीं चलेगा। चेहरा जो जो भाई जिसकी तकलीफ होती है अल्लाह वही जानता है क्या होता, और कैंसर का पेन कैसा होता है। पूरा एकदम बैठी रही।
खूब दुआ देनी। तो दैट इज होम्योपैथिक, किसको कहते हैं। अब अगर हम और चैलेंजिंग केस हमें एक दिखा रहे हैं अपनी जिंदगी का, ये दिखाओ मोहम्मद खान। एक जो लोग इंग्लिश नहीं समझते हैं उनके लिए मैं ये केस दोबारा डिस्क्राइब कर दूं। आप एकदम वेरी गुड। Okay. So the people who do not understand Hindi, I will explain you guys. This is the case of squamous cell carcinoma, and I already put a video of that lady. That lady having a squamous cell carcinoma of the tongue, and when she come into the clinic, she already has having a very agonizing pain. Whole the side she has pain in all these side, and this is because she has a, squamous cell carcinoma, and this is the resultant of that lesions. But if we prescribe on constitution basis, we will not go on what we have in front of us, because we already have advanced pathology. The pain is because of that advanced pathology. But when we enter into the cases, we find out that the lady having a husband death, after death of that husband, slowly that grief becomes so intense that that grief is converted into the cancer. And even from 20 years, she has a very active memory of that incident, as if that incident happened a day before. When she talks, she start crying, and immediately sir give her ignitia, and she will be fine 80% in 10 minutes. 10 minutes. We didn't take any pathological symptoms. We didn't take any type of pain. We just prescribe how she will stuck in last situations. So according to the constitutional basis, we always prescribe on what the patient in the disease. So the patient is still stuck there with the husband death, because this is the biggest loss for one female, especially a household female, and she is feeling alone. She is crying because nobody was there to take care of her. So ignitia is the remedy, and this ignitia almost give 80% of pain relief in 10 minutes. This was the case. So we will discuss more cases, but after sir finish the case, I will describe you all in English so you can understand. Stay with us. थैंक यू। दूसरा केस ये कर रहे हैं देविंदर। Yes, sir. चलो, ये पिक्चर दिखा रहा है, जी इसको देखो। जी सर। दिखाओ पहले, अच्छा से नहीं, इधर आके दिखाओ, अच्छा से दिखाओ। बिफोर ट्रीटमेंट फोटो है। बिफोर ट्रीटमेंट, आफ्टर ट्रीटमेंट, अच्छा से आफ्टर ट्रीटमेंट, चलो, ये केस बड़ा चैलेंजिंग केस है मेरी जिंदगी का। अब हम बता रहे केस के बारे में। ये एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम डायग्नोज था, समझे ये देविंदर। Yes, sir. एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम, एंट्रोपियन सर्जरी, herpes in left eye, cornea
unfiltered due to eyelashes and viral infection. ठीक, ये इनको बीमारी था। इसका फिर तुम बताओ, तो फीचर बताएंगे इसके बारे में, बताओ तुम। Majorly complaints था continued 2 years, left-sided eye problem. The pain was severe, agonizing pain, unbearable pain, constant 24-hour pain, and night only relieved by painkiller injections 2 times. 2-time operation, treated under one of top eye specialist. After operation, she was infected in right eye as well. Eye specialist said one more operation, but patient himself was a nice doctor. She became very exhausted, and after operation, no result. She became very hopeless, and night severe pain, and after painkiller injection for some time the pain was gone, but after some hours the pain came back. There was no appetite, no sleep, and ये का कंप्लेंट था। रविंदर, तुमने समझा? जी जी सर। अब मैंने इनको सब केस टेकन करने के बाद आई प्रिस्क्राइब आर्निका दिया था ना, आर्निका 30 रिपीटेड डोज आधा घंटा पर। के बाद हमने 2 हफ्ते के लिए दवा दिया था। फिर आर्निका फिर 201 एम तक गए। वो हफ्ता में हमको ट्रेमेंडस रिजल्ट मिला, ट्रेमेंडस पेन रिलीफ। बहुत अनबेरेबल पोजीशन में वो थी। और तो आर्निका, हाउ टू प्रिस्क्राइब, व्हाट अबाउट काउजिंग फैक्टर एंड आर्निका कैसे हमने दिया इन अप्रोच आई प्रॉब्लम में आर्निका किस तरह। ऑपरेशन के बाद उसको सारी तकलीफ पड़ी। एक ट्रॉमा भी चल रहा था उसकी फैमिली उबली में। वो बहुत बता नहीं रही थी, लेकिन वो बोल रही थी कि चल रहा है के साथ भी एक तरह से अलग उलग हो गए थे लोग। रिसर्च चल रहा था, वो प्रोमिनेंट हमको नहीं कहीं बताया डॉक्टर साहब। तो हमने उसको एक तरह से ट्रॉमा में लिया। बोले बहुत परेशान, हम 10 साल से परेशान है, फिर आंख की प्रॉब्लम। तो एक ये का शौक का, ये ऑपरेशन के बाद मेरी और तकलीफ ये सब बढ़ती चली गई। फिर वो ऑपरेशन 2 दफा करने के बाद तो मेरी वो हमने जब देखा तकलीफ और ट्रॉमा, फिर उसके बाद इंजुरी ऑपरेशन के शक्ल में, तो और भी अदर देखा जो मैं बता रहा हूँ। तो आई थिंक अबाउट आर्निका मोंटाना। ट्रेमेंडस रिजल्ट। उन्होंने कहा 30 हम दिया, आधा घंटा 20-20 मिनट पर कि खत्म होगा, फिर 30, फिर 30, 3 दफा 30 दिया। एक दफा आधा घंटा पर, एक दफा 20-20 मिनट, एक दफा 15-15 मिनट पर, फिर 200। तो उसमें बोली आपको पेन तकलीफ में आपके ये देने के बाद ही से कम 1-2 घंटा के अंदर 50% पेन में आराम मिल गया। मैं सोई सुकून से। तो हमने ये भी कहा था आप इंजेक्शन जो लेती हैं लीजिए। बोले लेने से भी नहीं कोई इफेक्ट होता है। तो बोले हम लिया था, लेकिन आप, हम बोला तो ले सकती हैं। बोले इसमें आराम मिला, आराम मिला बहुत हमें। एक सेकंड थोड़ा, हमको उन्होंने कहा, एक सेकंड थोड़ा, इसको बदलेंगे सिस्टम। नहीं कुछ नहीं करता। 156 56 156 ठीक है, वो वाला देंगे जाएगा। ठीक, हम देखते हैं।
वही होना चाहिए। तब डॉक्टर देविंदर सिंह, तब हमने उसको ये ट्रॉमा लिया, एनालाइज किया, ऑपरेशन के बाद उसको जो बड़ा तकलीफ करने के बाद अर्निका लिया। अर्निका से 1-2 घंटे के अंदर 50% पेन में रिलीफ मिला है और ट्रेमेंडस रिजल्ट। तो हमने फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, द काउजिंग फैक्टर, एक ट्रॉमा इंजुरी हमने लिया। इसमें उसका कहना है कि हमको ऑपरेशन के बाद मेरी तकलीफ सब बढ़ी और मेरा कुछ साल से चल रहा, घरेलू नहीं बोलना चाहती थी। अब पूछा, मैंने बहुत परेशानी, टेंशन का लाइफ गुजर रहा। हमने ये भी कहा कि क्या मेंटली एकदम, तो बोले हाँ एकदम टॉर्चर की तरह चल रहा इधर से ये परेशानी। तो हमने इसको एक ट्रॉमा की शक्ल में लिया और हमने ये दिया। फिर अदर वेरी वेरी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम इज मोन्टाना, all through the body, lame, bruise, feeling all through the body, पूरे बदन में दर्द। हमने पूछा, एक एकदम मार के बदन तोड़ दिया जाता है। बोले वैसा डॉक्टर साहब, एकदम लगता पूरे बदन को तोड़ बदन इतना मारा है, इतना दर्द। अकाउंट ऑफ द पेन, फुल हेड टू फुट, lame, sore, bruised, bitten like, बहुत दर्द। की नोट मटेरिया मेडिका फर्स्ट 3-4 लाइन के बाद बोल लेटर में है, अपर पार्ट हॉट, लोअर पार्ट कोल्ड। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ आर्निका मोन्टाना, वेरी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन। एंड इसका एक एग्जाम्पल हम देंगे आपको। अपर पार्ट हॉट, लोअर पार्ट कोल्ड, एंड nose is very cold. Nose is very cold. Very, very important. The great keynote-like symptom, whatever may be the problem of the disease. In Clark Materia Medica, मेरे हिसाब से 27 या 28 पहला पेज में होगा। 28 पेज, 28 लाइन। हाँ सॉरी एक मोहम्मद खान की मटेरिया मेडिका जो है, ये हमसे भी अच्छा हो गया। अच्छा मटेरिया मेडिका ये जान गया आप लोग भी। देविंदर, हाँ, के लिए भी दुआ करोगे, समझ गए? जी सर जी। हाँ, भतीजा है तुम्हारा। जी जी। देखो अभी हम ये कर रहे थे, पेज मिनट उनको याद है लाइव। मोहम्मद खान का मटेरिया अच्छा हो रहा बहुत। क्लार्क मटेरिया मेडिका फर्स्ट पेज में देखो 28 लाइन में वहां लिखा हुआ, नोज कोल्ड, वेरी कोल्ड, गाइडिंग लाइक सिम्टम। उसमें लिखा हुआ है फैशियल न्यूरेलिया के अंदर, क्लार्क में लिखा हुआ है न्यूरेलिया के अंदर उन्होंने इस सिम्टम, गाइडिंग सिम्टम था नोज वेरी कोल्ड। इसके ऊपर कोल्डनेस ऑफ द नोज के ऊपर उन्होंने प्रिस्क्राइब किया और फैशियल न्यूरेलिया इज द कंप्लीटली क्योर्ड। इज द डेट सिम्टम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हमने पकड़ा तो देखा एकदम बर्फ की तरह ठंडा। इन क्लार्क मटेरिया 28 लाइन में जितने भी फॉलोअर हमारे देख रहे हैं, आप उनको पढ़िएगा। 28 लाइन में लिखा हुआ है, दैट इज होम्योपैथिक इज प्रैक्टिकल। इसमें थ्योरी का कोई जगह नहीं है, एकदम प्रैक्टिकल। ये रेपर्टरी सब में हेल्प की जरूरत है, लेकिन नहीं होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट में कोई जरूरत नहीं है।
individualization of the constitution and grand keynote-like symptom, uncommon striking symptoms. There are other features also very, very important. Fear. Fear stuck him in approach. मिलना, कोई आना, खौफ ज्यादा थी, अरे बात कोई टच नहीं हो जाए. Challenge. Account of the pain more severe. And इसकी नोट पे बोगर मटेरियल fear. अप्रोच कोई सामने नहीं आ जाए. सोच हो जाए कौन है, अरे बाप रे, अप्रोच स्टक. सुन लो हमसे मिलो नहीं. इतना चला नींद में उठ जा रही है. डॉक्टर साहब नींद उठ जा रहा है, पक्की नहीं आ जाए. कोई आया है क्या? मत आप पूछो वही रहो. These are the features of Arnica montana. I prescribe Arnica montana. ट्रिटमेंट रिजल्ट जो हमने दिखाया है इसको रविंदर can Muhammad Khan can show me the pictures again. So this is the case of antiphospholipid syndrome. This is a antiphospholipid syndrome, and they will show you the pictures again. So after that, I will discuss the whole case. So this is before treatment, and this is phospholipid syndrome, antiphospholipid syndrome. This is before treatment. And this one is also before treatment picture. Before treatment, look at the pathology, look at the severity of the case, and after treatment, they will show you the after treatment. After treatment picture. So this is the difference: pathology plus after treatment, homeopathic treatment. So this is the case of antiphospholipid syndrome, where the person having all this trouble after operations. After operation, everything is come after operation. Every aggravations come of operations. And when this person visit the surgeon again, he told her that she has to go again for the surgery, and she's denied because she don't want to go for the surgery again. So she came here. She discussed the whole case with Dr. Balan Khan sir. And this is very, very important. When anything aggravated after surgery, it itself a very leading indications of arnica. Many times, even the pregnant women, if they go for the surgery for childbirth, even after birth, they prescribe arnica too here. But this is the surgery of eyes, and after surgery, the lady having all this aggravation, all this problem increase. So they prescribe. This is the leading indications. They give a door for the medicine. After that, when we go more deeper, she has so many problems at home, and this is one type trauma they describe, because she is getting lots of problems at homes. So we will take it as a trauma, because this is a type of trauma. This is an emotional trauma. That's why in arnica, trauma described in two ways. One is physical trauma. This is a similar like injury. Somebody get accident. Somebody get blow or anything else. This is a physical trauma. But when we are discussing the emotional trauma, we have to see how the patient receive all this information on herself.
So she has lots of problem at home, and this is a type of emotional trauma to her. After that, she described that she has a very severe pain in the whole body because the eyes is involved there, but having a agonizing pain in the eye. But along with the eyes, the whole body has pain, soreness and bruisedness. And I will give you one indication how to understand. Bruising pains are not that much severe. The person is getting cry a lot, but bruising is a small, slightest pain which the any person can bear, but this is disturb the patients. The second most important part here, the bruising pain having on whole body. The third important things is the upper body heated and lower body cold. So this is start from the head. If the head is hot and the nose is cold, this is called arnica sign. This is the arnica sign. So if we see in Clark Materia Medica, I already shown you. I again show you. So this is the indication of arnica. So the odd symptom of arnica is coldness of the nose. This is a grand characteristic of arnica. That's why we didn't prescribe to the patient just seeing that the person having operational aggravation and we prescribe the arnica. No, until and unless arnica fit in the whole personality, we cannot prescribe arnica. Now, these are the leading indication. First, all aggravation after operation. Number two, bruise, sore like pain in the whole body. Number three, the upper body heated, lower body cold. And fourth one, coldness of the nose. These are the leading indications of arnica. That's why we prescribe arnica. Otherwise, if all three are missing there, then we have to go in other side. We have to search out other remedy. So these are the characteristic. Until and unless the whole body cover the whole medicine cover the whole body, until we cannot prescribe arnica. This is the reason when we are dealing with constitutional medicines, we have to check it out from head to foot. So we can strong our remedy. So during this prescription, you will even smell the any symptom or pathology in this prescription. We didn't get any pathological symptom. We get the symptom of the patient. That's why we prescribe arnica. Over to you, sir. Thank you. Very good. Now, टाइम हो रहा 39. सुनो, अब तुम ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे, दिखाओ। पहले टॉर्च लाइट का दिखाएंगे कि बताइए। एक जमिंदर हम एक केस यंग बच्चा का है, छोटा, जी सर। और 6-7 साल का है। उसका एक ओवर ग्रोथ हुआ था, सिस्ट, छोटा सा ट्यूमर सिस्ट हुआ था। उसके पास तो डॉक्टर ने, बच्चे के डॉक्टर ने ENT ने बायोप्सी करने के लिए बोला था, बड़ा पेनफुल था। तो उसकी माँ बहुत परेशान थी कि बायोप्सी तो के लिए किया जाता है, तो बड़ा वो लोग परेशान हो गया। बोला वहां पर डॉक्टरनी बोली वहां काटना होगा, ऑपरेशन करना होगा बायोप्सी टेस्ट के बाद। तो हमारे पेशेंट लोग हैं, ताल्लुकात में लोग हैं, रोना धोना उन्होंने लगा दिया। तो पेन बहुत होता था, 4 महीने तक पेन चलता था।
हम थोड़ा सा उसमें रविंदर हम थोड़ा खा भी रहे कुछ, अभी दिन भर हम पेशेंट देख के जो आए हैं ना, खाए नहीं है, थोड़ा नो खा भी रहे, साथ नो साथ बोल भी रहे, ठीक है ना? जी सर, नो इश्यू। परमिशन है ना? जी सर, बिल्कुल। तो वो क्या हुआ, वो हमारे रिलेटिव में पढ़ते हैं ना, थोड़ा जान पहचान, सब पेशेंट भी मेरे हैं। तो उसकी माँ जब से बोला, तो उसकी माँ 5-6 दिन से दिन और रात रो रही है। बड़ा खूबसूरत केस है रविंदर, सुनने का है। तो रो रही है और बुखार आ गया, रोते रोते उनकी तबीयत खराब हो गई। डॉक्टर उनको एनटी वाला बोल दिया कि इमीडिएट कराइए, आप पेट करा के ऑपरेशन इमीडिएट कराइए, नहीं तो अच्छा नहीं है, वो स्प्रेड कर जाएगा दूसरे तरफ। तो बाहर रोने तो फिर हमारे पास लाया गया, बातचीत हुई। तो हमने उनको समझाया, देखो एक होम्योपैथिक फिजिशियन के साथ एक सिंपेथेटिक हैंड भी होना चाहिए। हम वो औरत को मार्क कर लिया कि पल्सर पीला है, तो हमने अपना सिंपेथेटिक हैंड रख दिया सर पर। बोला कुछ नहीं होगा, बच्चा 1 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। तो ऐसे कर रहे थे कि उसके बाद, डॉक्टर साहब क्या बोल रहे हैं आप? हम बोला हाँ, 1 हफ्ता में ठीक हो जाएगा। होम्योपैथिक इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग, ये केस में पूरा आर्ट है। बोले क्या बोला डॉक्टर साहब? हाँ, तो मुस्कुराने लगी, तो उसके साथ सब थी। हम बोल रहे हैं, कोर्ट का कागज में लिख रहा होगा क्या? बोले नहीं डॉक्टर साहब, अल्लाह, अरे हमने एकदम मेरे सामने दविंदर, अल्लाह आपको उम्र दे, हयात दे अल्लाह ताला। बहुत 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 रोने लगी, मुस्कुराने, अरे एकदम हैरत ना। उनकी बहन बोलती है कि पहला दफा हंसी है 6 दिन में, मुस्कुराई आपके बात से। अब बोली क्या कि डॉक्टर तो आप ऐसा होना चाहिए दुनिया में हर जगह। यही वर्ड है दविंदर, यही वर्ड है, ये मेरा रिवार्ड है, अवार्ड बहुत बड़ा। जी सर। मतलब ये होता है ना, पद्म भूषण, पद्म क्या क्या होता है ना, ये अवार्ड आपको मिल गया, वो लड़की दी औरत। आपकी तरह डॉक्टर होना चाहिए डॉक्टर साहब। बोला हम जिम्मेदारी में कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ये होने के बाद हैंड जो है ना होम्योपैथिक में, जबान और हैंड ऐसा रहे कि उसको पेशेंट को तुम पर भरोसा आ जाए। जी आफ्टर दैट रेमेडी प्रिस्क्राइब, दैट इज होम्योपैथिक, इज द टोटल होम्योपैथिक, टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। होम्योपैथिक इज द टोटल आर्ट ऑफ हीलिंग। अब सुनो, अब उसके बाद हमने केस टेकिन किया। अब तुमको मोहम्मद खान बिफोर ट्रीटमेंट आफ्टर ट्रीटमेंट के बारे में बताएगा। उसको हमने रोडेंड्रोन दिया था और जादू की तरह रिजल्ट। पहले देख लो, पिक्चर दिखाओ। बिफोर ट्रीटमेंट थोड़ा सा पीछे कीजिए। जी। So this is the overgrowth. This is a small kid having a overgrowth inside the mouth. This is before treatment. बिफोर दिखाओ, आफ्टर दिखाओ, तुम उसको एक्सप्लेन करो। जी This is also the picture of before treatment. So this is also a before treatment. Before treatment photo as well. Yeah. And this is the photo of after treatment. थोड़ा सा पीछे कीजिए. Yeah. So this is after treatment. There is no growth. No growth over there. After treatment photo. No growth. After treatment photo, no growth. This is After overgrowth
in the mouth before and after. We show you both. आपके पास कमी होगा, ऐसा हो सकता है समुद्र में कमी पानी हो सकता है। चलिए ठीक है, तुमने देख लिया। जी सर। अब हम वो एक्सप्लेन कुछ करोगे कि आप पूरा बोल रहे उसके बाद करोगे? नहीं, आप बता दीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा सर। बच्चे की एज क्या थी सर? बताओ। 5 साल की थी बच्चे, 5 years old. 5-year-old kid. I prescribe rhododendron. 200. 3 dose morning, night, morning. After 200, 2 हफ्ता का 3 या 4 रोज के अंदर दर्द तो कम हो गया। सुबह रात खाने के बाद ही हल्का कम हो गया। दूसरा दिन से कम होने लगा। मंडे ज्यादा ने हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता के अंदर ही खत्म हो गया। अब हाउ टू प्रिस्क्राइब दिखाए थे? अभी नहीं देखा है, आप तो बताइए। अब तुम जो है, अब जो हम एक दिखा रहे हैं वो देखो, जो कॉन्कोमिटेंट किस पर हम दिया है। 1 मिनट। ये इसकी तकलीफ बढ़ती थी विंडी वेदर में, कोल्ड विंडी रेनी वेदर में की तकलीफ बढ़ जाती थी हमेशा। ये सब का प्रॉब्लम होता था, ठंडा भी लगता था, ये भी हो जाता था स्वेलिंग। रिलीफ बाय हॉट एप्लीकेशन, वार्म वेदर और उनके रहने से उसको कुछ आराम मिलता था। ये भी की मोडेलिटीज है रोडेंड्रॉन का। अब एक करेक्टर दिखा रहे हैं जो वेरी अनकॉमन पिकुलियर कैरेक्टरिस्टिक एंड ग्रांड की नोट फीचर। वो पिक्चर दिखा रहे हैं, वो देखो के बाद एक्सप्लेन करेंगे। ये एक है, legs are crossed while sleeping. Legs are crossed by doing work. क्या बोल रहे थे? Legs are crossed. बेचते हैं वो सब। कम्बल दे रहे हो, Legs are crossed. Still he's doing some work. क्या हुआ? दिखा दिया। तो रविंदर, तुमने देखा पिक्चर? जी सर जी। ये सारा क्रेडिट तुम्ही को जाता है। तुम इस तरह का होम्योपैथिक को फैला रहे हो, ये तुमको क्रेडिट जाता है बहुत, 90%। तुम रियल होम्योपैथिक को चाहते हो हिंदुस्तान एशिया में आए, इसके लिए तुम खुद खटते हो बहुत। और कनाडा, इंडिया से जाके कनाडा में भी कर रहे हो। तुम एक काम करोगे जी सर। तो अच्छे डॉक्टर हुए, तुम भैया से भी बात करोगे, प्रोफेसर एलम खान से। जी सर। जब अपील करोगे, हम भी भैया से फोन करके बोले, उनका तो तबीयत ठीक नहीं है, अभी हो जाए। और गणन जो है वो बहुत बेहतरीन जानने वाले हैं जी। तो उनसे भी रास्ता तो फिर करोगे। तबीयत हम भैया से खुद भी बोलेंगे उनको जी जी। कि तुमसे ये करने के लिए। और दूसरी बात है, अब हम बता रहे हैं ये मॉडर्निटीज। और ये बच्चा जो है, जब हम केस टेकिंग गए इसके घर में भी, क्रॉस लेग, बैठना उठना पढ़ना लिखना हर जगह में क्रॉस लेग इसका रहता है। तो हम और फेयर ऑफ थंडर में भी नहीं गए। जब इतना प्रोमिनेंट जब हम देखा। और दूसरी बात, तुमने भी पिक्चर देखा होगा देविंदर? जी सर। और
50। तुमने भी देखा होगा रविंदर। जी सर। तो लास्ट पेज एक लाइन के ऊपर एक लिखा हुआ है, बस क्रॉस लेग। रोगर मेटेरिया मेडिका में एक दो लाइन के ऊपर, लास्ट वाला एक दो लाइन के ऊपर लिखा हुआ है, मस्ट क्रॉस लेग ड्यूरिंग स्लीप। मस्ट, व्हाट डू मीन बाय मस्ट? उसके ऊपर और लिखा हो गोइंग टू द मस्ट क्रॉस लेग, 3 जगह लिखा हुआ है क्रॉस लेग इन स्लीप। लेकिन रोगर में जो वर्ड लिखा हुआ है रिस्क में भी लिखा हुआ है, बगैर उसके क्रॉस लेग के उसको नहीं सकता है। लेकिन बोगर में जो ये लास्ट वर्ड में लिखा हुआ है, नीचे से एक दो लाइन ऊपर, बिल्कुल लास्ट लाइन है सर, हाँ बिल्कुल लास्ट लाइन है। लास्ट लाइन, मस्ट क्रॉस लेग इन स्लीप एंड ड्यूरिंग स्लीप। व्हाट डू यू मीन बाय मस्ट क्रॉस लेग? एकदम दम 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 एकदम हर हालत में ये होना ही चाहिए। इसके बगैर हम नहीं सो सकते, नहीं बैठ सकते, नहीं उठ सकते, नहीं, नो। मेरी तो इंग्लिश बहुत वीक है, तो मीडियम के है, टोर है, लेकिन मैंने एक वर्ड को 20-20 साल स्टडी किया है। हमको नहीं लगता है रविंदर, अल्लाह माफ करे, प्राउड की बात नहीं है कि इस तरह से कोई ऐसे चबा के 10-10 साल पढ़ता है, समझे रविंदर? जी सर बिल्कुल। तो मेरे इस बात से तुम इत्तेफाक करते हो जी सर कि बिल्कुल। मस्ट क्रॉस लेग। वर्ड क्या है? देखो, बहुत बहुत एनालॉजिकल बात है रविंदर, जी सर। इसको तुम सोच समझ के एक्सप्लेन करोगे बहुत। ये होम्योपैथिक की ब्यूटी है। हम लोग होम्योपैथिक को देविंदर खत्म कर रहे हैं, जी जी सर। इतना बता दे रहे हम। हो सकता है कि तुम्हें बोलोगे सर तो भाई अपना बोलते हैं वो, और वो लोग अपना, वो अपना अपना। हम बहुत सच्चा बात तुमको बोल रहे हैं, कड़वा सच। होम्योपैथिक खत्म हो रहा है, हम लोग खत्म कर रहे हैं। आखिर तुम ये बोलो, ये वर्ड क्यों लिखा है मस्ट क्रॉस लेग ड्यूरिंग स्लीप? जब कॉन्शियस है, कंसस में है, दिन भर काम कर रहे, रह रहे, खड़ा हो रहे हैं तो ऐसे, पढ़ रहे हैं तो ऐसे, और सोएंगे भी उसी वक्त। हमको नींद उसी वक्त आएगा, उसी वक्त आएगा जब तक हम क्रॉस लेग ना कर ले। हम नहीं सो सकते बगैर क्रॉस लेग के। दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल एंड ग्रेट कीनोट लाइक सिम्टम। बोलो देविंदर, ये मीनिंग का एक्सप्लेनेशन ठीक है? बिल्कुल सर बिल्कुल। That is great concomitant of Frozen 153 Honeyman. Most striking, what do you mean by striking? अरे अब तुम साला पागल है क्या? तुमको जब तक क्रॉस लेग नहीं किया तुम सोएगा नहीं। नशा, अब नहीं मर जाएंगे लेकिन पिघल नहीं। ऊपर वाले ने मेरा बट्टी ऐसा बनाया है कि हम बहुत अच्छा से पढ़ाई करेंगे, क्रॉस लेग करके पढ़ते हैं तो बड़ा अच्छा से एकदम उसी से। हटा दोगे तो मेरा, हटा देने तो डिस्टर्ब हो जाएगा। मम्मी हमको मना करती है, बच्चा बोलता पढ़ने ड्राइंग बनाते हैं तो मम्मी मना करती है। फिर मम्मी मना करने के बाद मम्मी से जब पूछते हैं, मम्मी बोलते आगे देखते हो, तो फिर बोला मम्मी ऐसा मत कीजिए, हमको नहीं दिला, नहीं पढ़ेंगे हम। तो नहीं हटा के ऐसे पढ़, हम ऐसे किए हुआ बैठा हुआ,
हटा देंगे, बोले फिर पढ़ेंगे नहीं हम, मम्मी नहीं पढ़ेंगे। फिर उसके बाद देख रहे ठीक करके ड्राइंग बना रहे। तो ब्रूगर मटेरियल जी का लास्ट लाइन मस्ट 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 क्रॉस लेग इन स्लीप एंड ड्यूरिंग। मस्ट, जब तक हम कर ना ले नींद नहीं आएगा, हम नहीं सोच सके। The individualization, whatever may be the disease, even to cancer, whatever may be the tumor and brain tumor, too much, multiple brain tumor, this quality and this feature prominent, only drug is rhododendron. अगर fear आ जाता और पॉजिटिव, fear also fear of thunder also very concomitant, but fear of thunder होना चाहिए। बाप रे, उड़ा के ले जाएगा, बाप रे बाप, भागो कुछ। But this symptom, this physical character, जब कहीं खड़ा होंगे तो ऐसे ही हो, पढ़ेंगे तो ऐसे ही हो, तुम्हें उसी वक्त जब तक नहीं हो। आपने उनकी माँ से पूछा इस बच्चा को क्रॉस लेके, तो बोला हाँ, बोले हटा देते हैं, बोले उड़ जाता है, हटाते तो उड़ जाता, फिर देखते हो उसी क्रॉस लेग ऐसे है, ऐसे करके है तो हुआ है। कभी कभी पैर उठाता है ऐसे करके, रोता है ऐसे करके, ऐसे करके उठा के भी रहता है तो ऐसे करके रहता। आप हटा देती तो फिर देखते हो उड़ जाता है। हम बोला गहरा स्लीप तो रहता है, बोले वही ऐसे करके तो तब बेखबर से उठता। ये क्या है, क्या है ये फैक्टर है, अनकॉमन स्ट्रॉन्ग। ये एक ऐसा फीचर है जो रोडेंड्रॉन को इंडिविजुअलाइजेशन करता है, जो प्रोमिनेंट ग्रांड कीनोट फीचर, द शेप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द पिक्चर दैट रोडेंड्रॉन आई प्रिस्क्राइब, द पेशेंट इज कंप्लीटली क्योर। जो हमने दिखा दिया, अब तुम इसको रोडेंड्रॉन, So can you एक्सप्लेन करो देविंदर, show me और the pictures again? राजा को ये दे दोगे, हमारे फेसबुक पे मेरे भी फॉलोवर देखें इनको। Can you show the pictures again? हाँ, क्या पिक्चर दिखाना है, पिक्चर फिर से दिखा दो, So who और did एक मिनट पिक्चर फिर से देख लो और वो सब दिखा दो। this is overgrowth in the mouth. This is before treatment. The next one. वही So this is the second picture. There is an overgrowth in the mouth, and this kid is of 5-year-old. This is before treatment. बिफोर ट्रीटमेंट एज वेल। This is before treatment. दिस इज आफ्टर ट्रीटमेंट। After treatment. So the remedy was rhododendron. Rhododendron. How they prescribed the remedy to this kid, Sir described the very, very two important feature of that small kid. The first and a very, very important symptom of that patient is everything, every complaint, all symptoms, all pain, everything in the mouth, aggravation, increase worst by wet, windy weather, cold weather. Whenever there is a windy weather, whenever there is a cold weather, the problem increase. Problem increase. So the pain increase, the growth increase, everything is increase in wet, cold, windy weather. This is described in Allen's keynote आफ्टर in ट्रीटमेंट।
in italic letters. It means this is not a simple words. It means this is a clinically verified symptoms. The problem increase in cold, windy weathers. This is one of the important symptom here. The next symptom, which is the grand keynote of this case, whenever patient sit, whenever patient lie, whenever patient sleep, they cross leg. Can you show the pictures, please? Cross The leg. picture of cross leg picture. So see, in these pictures, every time, whenever the patient sleep, look at this, whenever the patient sleep, this is the sleeping pictures, his legs are crossed. The next picture, look at this, he is sitting, again, the legs are crossed. Next picture, look at this, he is sitting, studying, but the legs are crossed. Next picture, look at this, sitting, legs crossed. So I remember I have one case almost 12 years before, the similar thing, the legs are 1 year old. I will show you after any other time. So look at this. If you read Alan's keynote, I will show you here. So cannot get sleep or remain asleep unless the legs are crossed. This person never ever able to sleep until the legs are, even if he doing study, if he is sitting, if he is lying, if he is sleeping, always cross the legs. हो ही गया खत्म. So this is two very unique feature, and they are not related to रविंद्र, एक technology. सेकंड, एक पेशेंट है, हम देख लेंगे. आप जी सर, अब सिर्फ 2 मिनट दे दीजिए आप. एक्सप्लेन कर दो, हम देख लेते हैं. एक्सप्लेन कर दो. We are going to finish, sir. Sir, just 1 minute. Just 1 minute. Just 1 minute, sir. अच्छा, 1 मिनट, ठीक. So this is the unique feature. This is the concomitant, not related to pathology. So I would like to thanks Dr. Shoaib Alam Khan, sir. And if you want to give any blessing, sir, please give your because you have a very limited times. So what you want to say to all our viewers? Because we are going to finish the session today. Yes, sir. Over to you. ठीक है, रविंदर, थैंक यू. सर, आप अपने व्यूअर्स को कुछ कहना चाहते हैं? व्यूअर्स को मतलब यही कहेंगे हम, रविंदर, तुम बहुत अच्छा से एक्सप्लेन कर सकते हो. तुम तो मेरा रोको, बोलो को रोकोगे. यही कहना चाहते हैं कि हम लोग वी आर होम्योपैथ सर्चिंग पेशेंट, individualization of the patient, whatever may be the disease, even to cancer, every large pathology, कोई disease हो, any disease, any pathology, any incurable disease, accurate prescribing. जैसे अभी हमने एक बात कहा है कि must cross leg during sleep. What do you mean by must cross leg? मस्ट क्रॉस लेग. अगर ऐसा है कि बेगर क्रॉस लेग वो सो ही नहीं सकता है, हटाने से नींद टूट जाता है, सो नहीं पाता है, क्रॉस लेग के बाद गहरा नींद आता है, उसको रिलीफ मिलता है. आई एम बेटर फॉर क्रॉस लेग, आई एम कंप्लीट. विदाउट क्रॉस लेग वो अनफिट लगता है, ठीक नहीं लगता है, उसको लिखने पढ़ने में भी नहीं मजा आता है. दैट इज द कॉन्कॉमिटेंट, दैट इज ग्रांड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम
whatever may be the disease having to cancer का ही नहीं हो, अगर जिस टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक है, अगर इस तरह का एक कैरेक्टरिस्टिक अगर है, इसी तरीके से इसी शिद्दत में कि मस्ट क्रॉस लेग, हर हालत में हमको इसी में आराम मिलता है, इसी में रिलीफ मिलता है, चाहे कोई बीमारी हो, कैंसर का ही नहीं हो, अगर हमने इस तरह का प्रिस्क्राइबिंग किया, इस तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स इंडिविजुअलाइज करके अगर दिया, तो पेशेंट को क्योर होना है, कंप्लीट पेशेंट इज क्योर, बिकॉज दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट. Thank you, sir. Thank you so much for your kind informations. And everyone must follow this information because this is only the way to give a constitutional medicines. Thank you so Yes. much. We will see you tomorrow and we will discuss these all information with all you guys. Thank you so much. Thank you.